مسیح یسوع کے ببرکت خوبصورت اور فتح نام میں جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت، گاسپل چینل UAE سے۔ بائبل کی باتیں پروگرام کا ایک نیا سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کلام جو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم اس کو سنتے ہیں، اس کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ سب کو بائبل کی باتیں پروگرام میں ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کا پاک ترین نسخہ موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں اور میرے ساتھ مل کر ان آیات مبارکہ کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اور پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا گاسپل چینل UAE سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خود دیکھیں اور پھر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ سو آئیں کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا نیا موضوع، آج کا ہمارا نیا ٹاپک، دعا جو ہے یہ ایک ایسی کی ہے جو آسمان کے دروازوں کو اوپن کر دیتی ہے۔ سو دین مسیحیت میں مؤثر دعا، آئیں کلام مقدس کی روشنی میں چند باتیں اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا عالم میں بہت سے مذاہب جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، لیکن ہر مذہب کے اندر دعا کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دین مسیحیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دین مسیحیت کے اندر دعا کی ایک خاص اہمیت ہے، بلکہ دین مسیحیت میں دعا ایک ایسی چابی ہے، دعا ایک ایسی کی ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں دین مسیحیت میں رہتے ہوئے دعا کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس بیزی دور میں ابلیس نے ہر فرد بشر کی زندگی میں سے دعا کی چابی کو چھین لیا ہے۔ سو میرے عزیزو، بہت سے لوگوں کے پاس دعا کرنے کے لیے وقت میسر نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، کلام اقدس ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایسی کی ہے کہ جو آسمان کے دریچے جو ہے ان کو اوپن کر دیتا ہے، آسمان کے دروازے جو ہے ان کو کھول دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، میرے ساتھ مل کر مقدس یعقوب رسول کا عام خط ہے اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 17 جو ہے وہ ہم مل کر تلاوت کریں گے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میںہ نہ برسے، چنانچہ 3.5 سال تک زمین پر میںہ نہ برسا۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر مقدس یعقوب رسول جو ہے وہ ہم تک اس بات کو بار کرانا چاہتا ہے کہ مرد خدا جس کو ایلیا کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ بھی ہماری طرح کا ہم انسان تھا، اور اس نے جب دعا کی تو آسمان جو ہے وہ بند ہو گیا، اور پھر جب اس نے دعا کی تو پھر آسمان جو ہے وہ دوبارہ کھل بھی گیا۔ اس کا مطلب ہے آسمان کو کھولنے کے لیے دعا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سو میرے عزیزو، بنیادی طور پر دعا سے مراد لوگوں کا خدا سے رابطہ یا پھر اپنے خالق حقیقی سے گفتگو کرنا ہے۔ میرے عزیزو، دعا کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی دعا مختلف صورتوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی دوسری گفتگو کی طرح
इसमें भी कई अनासर जो हैं वो शामिल हैं। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि खुदावंद खुदा से बातें करने के लिए कई इस्तिलाहात जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। मिसाल के तौर पर खुदावंद खुदा को पुकारना, खुदावंद खुदा को पुकारना। ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 17 है और उसकी आयत मुबारक 6, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा से बातचीत करने का ये भी एक तरीका है। ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ की, ऐ खुदा मैंने तुझसे दुआ की, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज को सुन ले। सो मेरे अजीजों, दुआ के लिए यह भी एक इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई है कि हम खुदा के हुजूर दुआ करें, क्योंकि वो हमें जवाब देता है। इसी तरह जब हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब में उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 26 खुदा का नाम लेकर भी उसको पुकारा जाता है। दुआ उसके नाम के वसीला से भी की जाती है। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 26 आयत का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और सीत के यहां एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। सो मेरे अजीजों, इस वक्त से लोग यहोवा यरी का नाम लेना शुरू हो गए और उसके नाम से पुकारना शुरू हो गए। इसी तरह खुदा के हसूर बुलंद आवाज से फरियाद करना, यह भी एक दुआ की इस्तिलाह है। ज़बूर की किताब और उसका 3 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर फरियाद करता हूं। मैं बुलंद आवाज से खुदा के हजूर फरियाद करता हूं और वो अपने कोहे मकदस पर से मुझे जवाब देता है। और यहां पर बुजुर्ग दाऊद जो है वो हमें इस बात के लिए इनकरेज कर रहा है कि मैं बुलंद आवाज से, खामोशी के साथ नहीं है, पोशीदगी में नहीं है, बल्कि मैं बुलंद आवाज से खुदा के हसूर अपनी फरियाद को पेश करता हूं, अपनी मुनाजात को पेश करता हूं और वो अपने कोहे मकदस से मुझे जवाब देता है। फिर इसी तरह दुआ के लिए एक और इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई है, खुदा की तरफ अपनी जान को उठाना। ज़बूर की किताब और उसका 25 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। अपनी जान जो है, अपनी रूह जो है खुदा के हजूर हंडेल देना, यह भी एक मुअस्सर दुआ की इस्तिलाह है। सो मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम यसाया नबी की सहीफे का मुतालिया करते हैं तो वहां पर खुदा के तालब होना, यह भी एक दुआ की इस्तिलाह है। यसाया नबी का सहीफा और उसका 55 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब रहो, जब तक वो नजदीक है उससे पुकारो। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हैं, जब हम खुदा के हजूर उसकी हजूरी के तालब होते हैं, उसके हजूर सजदा नगू होते हैं, उसके हजूर अपनी दरखास्तें, अपनी मुनाजातें, अपनी फरियादें रखते हैं, तो आसमान से अपने करम की नजर करता है और अपने आसमान को ओपन कर देता है, आपके लिए रहमतें बरसाता है, आपके लिए बरकत बरसाता है, आपकी जरूरतों को वो पूरा करता है। मेरे अजीजों, दुआ के जरिया से
हम खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी के साथ जाते हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। मेरे अजीजों, दुआ के जरिया से हम खुदा की फेवर हासिल करते हैं, दुआ के जरिया से हम खुदा की मदद हासिल करते हैं, दुआ के जरिया से हम खुदा के फजल के सामने जाने के लिए दलेर हो जाते हैं। सो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा के हुजूर सच्चे दिल से जब हम आते हैं तो खुदा हमारी दुआ को अपने हुजूर कबूल कर लेता है। सो मेरे अजीजों, जब हम सच्चे दिल से, जब हम पूरे ईमान के साथ खुदा के हुजूर आते हैं तो वो हमारी दुआ को सुनता है और हमारी दुआ को सुनकर फिर वो हमें जवाब देता है और वो फिर आसमान के दरवाजे जो हैं वो हमारे लिए ओपन कर देता है। इसीलिए मुकद्दस याकूब रसूल फरमाते हैं कि एलिया जो है वो भी हमारी तरह का हम खिदमत इंसान था। खुदा अगर उसकी दुआ को सुन सकता है, खुदा अगर उसकी दुआ को सुनकर आसमान को बंद कर सकता है, अगर खुदा उसकी दुआ को सुनकर आसमान को खोल सकता है, तो मेरे अजीजों, खुदा हर फर्द बशर से मोहब्बत करता है, हर फर्द बशर को अपने खानदान के अफराद बनाता है। जरूरत सिर्फ ये है कि हम अपने इस रिलेशन को खुदा के साथ इस्तवार करें। दुआ से मराद दिल से दुआ, दुआ से मराद अकल से दुआ, दुआ से मराद ईमान के साथ दुआ। जब आप पूरे दिल से, जब आप पूरी अकल से, जब आप पूरे ईमान के साथ खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो खुदा आपकी दुआ को जरूर सुन लेता है। इससे पहले अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दे और नई इंसानियत को पहन ले और खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू कर दे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा आप सबको दुआ में वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए।